ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا اور وہ کنفیوز سی بیڈ پر ایک طرف سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی اس قدر عجیب موڑ لے کر اسے حیران کر دے گی، جس کو دانیہ بچپن سے ہی لالا کہتی اور سمجھتی آئی تھی۔ اس کی عمر 19 سال تھی، جبکہ عازب کی عمر 27 سال تھی۔ ان کی شادی کچھ ہنگامی حالات کی وجہ سے ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بہت پریشان سی یہاں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اتنی بچی وہ بھی نہیں تھی کہ اس کو شادی اور باقی حقوق و فرائض کا معلوم نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے پریشانی سے اس کا برا حال تھا کہ صرف 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی شادی ہو گئی تھی، اور اس نے اس شادی کے متعلق کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی آنکھوں میں تو وہ کچھ اور خواب سجا کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن عازب سے شادی ہو جانا ایک بہت ہی عجیب اتفاق تھا۔ ابھی تو خاندان کے بہت سے لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ بابا کو بھی کیا ضرورت پڑی تھی میری ان سے شادی کروانے کی، جن کو میں ساری زندگی اپنا بڑا بھائی سمجھتی رہی۔ ان کے ساتھ شادی کتنی عجیب بات ہے، سب مجھ پر کتنا ہنسیں گے۔ اس کا سر بس یہی سوچ سوچ کے درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے کمرے کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں ڈریسنگ روم ہے کہ وہ جا کر چینج ہی کر لیتی۔ یہاں پر بیٹھنا بھی اس کی مجبوری تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر کھٹکا ہوا تو عازب کمرے میں داخل ہوا۔ کالے رنگ کی شیروانی میں ملبوس وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا موڈ کیسا ہوگا، لیکن اندازہ نہیں کر پائی۔ گندمی رنگت، گہری کالی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک اور مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر گہری خاموشی۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھ رہی تھی، اور ایسا ہی کچھ حال عازب کا بھی تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس اپسرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ دلہن بن کر اتنی حسین لگ رہی ہوگی۔ گو کہ وہ دونوں دل کے معاملات کو کافی مختلف تھے، لیکن اس وقت وہ اس سے نظریں نہیں چرا پا رہا تھا۔ دیکھنا عازب بھائی نے اگر تمہیں دیکھا تو وہ نظریں نہیں ہٹا پائیں گے، اور ان کو پہلے ہی لمحے تم سے محبت ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس کے کان میں اپنی دوست کا جملہ گونجا تو سارے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کا دیکھنا دانیہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور اس کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر تو اس کے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف آیا تو دانیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اسے غیر متوقع طور پر کھڑے ہوتے دیکھ کر عازب نے پوچھا۔ وہ ابھی بھی اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لالا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کی خوف سے کانپتی ہوئی آواز سن کر عازب شاہ کا پارا ہائی ہوا تھا، جبکہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی وہ کترا رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے آئندہ لالا کہہ کر ہمارا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کی تو میں وہ ضرور کر دوں گا، جس کے ڈر سے تم رو رہی ہو۔ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ کچھ نہیں، خاموشی سے بیڈ پر بیٹھو، کسی بھی قسم کا تماشا مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اب سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا تو وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں پر بیٹھ گئی۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ شادی میں نے بہت مجبوری میں کی ہے۔ تم مجھ سے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی کی امید مت رکھنا، لیکن یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ممی کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ان کی خواہش کیا تھی، لیکن مجبوری میں تم سے مجھے شادی کرنی پڑ گئی۔ وہ انسان جو اسے تھوڑی دیر پہلے اتنی محبت سے دیکھ رہا تھا کہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا، وہ اب ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے اب کمرے میں وہ نہیں کوئی اور موجود ہو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا یہ رویہ کیوں تھا، اسی لیے بس خاموشی سے سر کو ہلا دیا۔ جو بھی تھا وہ اسے اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے سرد نظروں سے دیکھتا رہا،
जबकि फिर नफ़ी में सर हिलाता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। और दानिया का दिल कर रहा था कि वो इतनी ऊंची आवाज़ में रोए कि उसकी रूह निकल जाए। मोहतरमा, जाकर चेंज कर लो और लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। और हाँ, ये कमरा शेयर करना मेरी मजबूरी है, लेकिन बेड शेयर नहीं कर सकता, तो तुम्हें सोफे पर एडजस्ट होना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर उसने एक नया हुक्म जारी कर दिया था तो दानिया ने बेसाख्ता सोफे की तरफ देखा और सर को हिला दिया था, क्योंकि उसके लिए भी बेड पर उसके करीब लेटना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। खामोशी के साथ रात गुजरने लगी। वो दोनों अपनी अपनी गहरी सोचों में गुम, अपनी ज़िंदगी के इस कदर अचानक बदल जाने पर हैरान रह गए थे। ये फैसला उनके लिए बेहतरीन साबित होने वाला था या बदतरीन, ये तो वक्त ही साबित करेगा। मगर हवेली की दूसरी मंजिल में कमरे में बैठी नाजिश फूट फूट कर रो रही थी। नाजिश, चुप कर जाओ, बेवकूफ़ों वाले काम मत करो। किसी को खबर हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा और तुम्हारा इमेज बहुत ख़राब होगा। तुम्हें पता है कि शादी की वजह से पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुई है। महविश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बेबसी से उसे समझाने की कोशिश की। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी इन सब को। इन्होंने मेरी मोहब्बत छीनकर उस लड़की को दे दी है और मैं चुपचाप देखती रही हूँ। मैं कभी भी उसे और आजिब को माफ़ नहीं करूँगी। तुम देखना, मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूँगी। उसने आंसू नहीं साफ किए थे, लेकिन उसने हतमी लहजे में कहा था और बहुत कुछ सोच लिया। तुम जो मर्ज़ी करती रहना, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल के लिए खामोशी साध लो, क्योंकि कोई ना कोई हमारे कमरे में सोने के लिए ज़रूर आएगा और तुम्हारे रोने से बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। महविश को इसी चीज़ की फ़िक्र थी कि बस वो खामोश हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बहन को यूं रोता हुआ देखे। कोई मेरे रोने पर सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन जो ज़्यादती आज दाजी ने मेरे साथ की है, उसका जवाब कौन देगा? उसके लिए सवाल कौन करेगा? नाजिश का बस नहीं चल रहा था कि वो आज दुनिया को बर्बाद ही कर दे। नाजिश, कुछ कहानियाँ पहले से लिखी जा चुकी होती हैं। तुम भी यही तस्लीम कर लो कि आजिब और दानिया की कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी, जिसको पाया तकमील तक पहुँचने के लिए बस हवेली के अफराद ज़रिया बने हैं। वरना इतने सालों बाद इस कदर अचानक उनका वापस आ जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। महविश ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा बेफर गई। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ महविश, कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बाकायदा प्लानिंग से यहाँ पर लाई गई है। मैं उनको नाकों चने चबवा दूँगी, क्योंकि मैं भी तो इसी हवेली का खून हूँ। और अगर दाजी ने अपनी बात के पक्के हैं तो मैं भी अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर उनको उनके फैसले पर पछताने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी नाजिश आफरीदी नहीं। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो सुर्ख होती आंखों से सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, उसका लहजा बता रहा था कि अब वो माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जो ख्वाब उसे दिखाए गए थे और उसके बाद जिस तरह उनके ख्वाबों को तोड़ा गया था, तो इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। और ये बात तो दानिया और आजिब ने तसव्वुर भी नहीं की थी कि उनकी ज़िंदगी किस तरह अजाब में मुंतकिल होने वाली थी। अगले रोज़ वलीमा था और जब उसकी आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ा हुआ था। सोफे पर ख़ुद को पाया तो चंद ही लम्हों में सब कुछ याद आ गया। उसने बेड की तरफ बेसाख्ता देखा और बेड खाली था, जिसका मतलब था कि मौसूफ वहाँ से जा चुके थे। वो खाली जहन से कितनी ही देर बैठकर पता नहीं क्या सोचती रही थी। ज़िंदगी किस तरह से बदल गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और किसी और की सोच में पहुंची हुई थी, जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला और पीछे से वो नाजिल हुआ और उसके ऐन पीछे आकर खड़ा हो गया कि इस दान पान सी लड़की का वजूद उसके पीछे छुप सा गया। वो डरते हुए ही आईने में उसे देख रही थी। इतनी खूबसूरत तो नहीं हो तुम कि तुमसे नज़र ही ना हटे, यानी आईने के सामने खड़े होकर जैसे तुम खुद को देख रही हो।
وہ طنزیہ لبو لہجے میں کہتا ہوا اس کا دل ایک بار پھر سے توڑ گیا۔ آپ کو حسین لگ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں نازش تو نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیسے اس کی زبان پھسل گئی اور وہ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے بے ساختہ ہی کہہ اٹھی، جبکہ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور ایک ہی جست میں آگے بڑھ کر اس نے بازو پکڑا اور اپنی جانب گھسیٹا تو وہ اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ اپنی حد میں رہنا، ذرا سی بھی حد کراس کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور اس کو میری دھمکی مت سمجھنا دانیہ آفریدی۔ اس کے منہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں جکڑتے ہوئے جس طرح اس نے کہا تھا تو دانیہ کی روح تک کام گئی تھی۔ وہ گو کہ بہت صاف گو تھی، لیکن بھول گئی تھی کہ مد مقابل بھی عازب تھا۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ اس کا بازو مروڑتے ہوئے وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ جی جی آ گئی ہے، میرا بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ نہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ مجھ سے ابھی سوری کہو اور 50 بار کہو۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر وہ حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ شادی کے اگلے ہی روز وہ کس قدر عجیب انداز میں اس سے فرمائش کر رہا تھا۔ جی؟ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت کم سزا رکھی ہے اور کہا ہے کہ 50 بار گن کر مجھے سوری کہو۔ اگر سوری نہیں کہو گی تو پھر میں جو کروں گا اس پر میں سوری نہیں کہوں گا۔ وہ اسے ڈرا دھمکا رہا تھا اور وہ واقعی ڈر گئی اور سر ہلا دیا۔ سوری سوری سوری، وہ اسے سوری کہہ رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اپنے کام کر رہا تھا، مگر اس کے سوری بھی گن رہا تھا۔ ولیمے کے دلہا دلہن بنے وہ دونوں بہت حسین لگ رہے تھے۔ جو بھی دیکھتا تو یہ کہے بغیر نہ رہتا کہ واقعی یہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے، جبکہ نازش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو آنکھوں سے ہی سالم نگل جائے۔ عازب کی نظر اس طرف گئی تو اس نے بے ساختہ ہی نظروں کو چرا لیا تھا۔ دیکھا تم نے مہوش، انہوں نے نظروں کو کیسے چرایا ہے، اور چراتا ہمیشہ جھوٹا انسان ہے۔ اگر یہ مجھ سے معافی مانگ لیتا اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا تو یقین کرو میں اسے معاف کر دیتی، لیکن اب تم دیکھنا مہوش، اگر میں نے اسے برباد نہ کر دیا تو میں کبھی سکون کا سانس نہیں لوں گی۔ نازش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو کھڑے کھڑے قتل کر دے۔ بیٹا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ، مجھے کچھ لوگوں سے ملوانا ہے تم دونوں کو، خالہ نے کہا تو نازش نے ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تو ہم کہاں پر کھڑی ہوں؟ اسٹیج پر کھڑے ہونے کے خواب تو آپ نے مجھے دکھائے تھے، لیکن آج وہاں پر کوئی اور کھڑا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں آپ۔ کم از کم اتنے خواب مجھے نہیں دکھانے چاہیے تھے، کیونکہ آج اگر میری آنکھیں ویران ہیں تو ان کی سب سے بڑی ذمہ دار آپ ہیں، اور اس کے بعد آپ کا وہ بیٹا جس کو شرم بھی نہیں آ رہی اور اب ہنس ہنس کر اپنی بیوی کے ساتھ پوز دے رہا ہے۔ نازش ان کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی تو شبانہ بیگم نے بے ساختہ اسٹیج کی طرف دیکھا اور پھر اپنی اس بھانجی کی طرف دیکھا جس کو واقعی سب سے زیادہ خواب انہوں نے ہی دکھائے تھے۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تمہاری آنکھوں کے ٹوٹے خوابوں کی ذمہ دار میں ہوں۔ شبانہ خالہ کو اس وقت مسکرا کر داجی سے ملتی ہوئی دانیہ بہت بری لگ رہی تھی۔ انہوں نے کیا نہیں کیا تھا، اور آج پھر بھی وہ ان کی بہو بن گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا خالہ۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا جو کہ خالہ کے دل پر گرا تھا۔ کیا ہو گیا نازش؟ بے وقوف مت بنو۔ مہوش نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا کیونکہ وہ خالہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم فکر مت کرو نازش، ابھی تو داجی کے فیصلے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے تھے، لیکن تم دیکھنا چند مہینوں کے اندر اندر اگر میں نے اس لڑکی کو حویلی سے نکال باہر نہ کیا تو میرا نام بھی شبانہ نہیں ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں عزم چمکنے لگا تھا اور فوراً ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں وہ اس پر عمل پیرا ہو کے رہیں گی۔ خالہ،
आप उसकी बातों में मत आएं। जो हो चुका है वो किस्मत का खेल था। महविश नहीं चाहती थी कि दानिया के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हो, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो मासूम सी लड़की थी। इसीलिए उसने अपने तय मना करने की कोशिश की और नाजिश ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। तभी शबाना बेगम को किसी ने बुलाया तो वो उन दोनों को अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए उस तरफ चली गई। तुम अपना मुंह बंद रखा करो खाला के सामने। मेरी बहन हो तो मेरी बहन बनकर रहो। ज़्यादा उस दानिया की साइड लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी कि तुम ता क़यामत भूल नहीं सकोगी। क्योंकि तुम बहन नहीं बन सकोगी तो फिर मुझे भी दुश्मन बनते हुए ज़रा वक्त नहीं लगेगा। नाजिश ने हाथ उठाकर तंबीह की और फिर खुद छोटे छोटे कदम उठाती खाला के पीछे चली गई। कासिम आफरीदी यानी दादी के 3 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे का नाम असलम था, दूसरे का नाम अकरम था और तीसरे बेटे का नाम मुकर्रम था। दादी ने तीनों की शादियां अपनी मर्जी से करना चाहीं। अकरम और असलम की शादियां बैक वक्त अपनी भांजियों से कर दी, जबकि वो मुकर्रम की शादी भी अपनी उसी बहन की बेटी से करना चाह रहे थे। लेकिन वो किसी तौर भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। सबने उनको बहुत समझाया था। शबाना बेगम का भी शदीद दिल था कि वो अपनी सबसे प्यारी बहन को अपने इसी देवर के लिए ब्याह कर लाएं, जो कि उनका कज़न भी था और सब बहन भाइयों में सबसे खूबसूरत और लायक फायक वही था। इसलिए उनकी यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी सबसे प्यारी बहन को यहाँ ब्याह कर लाएं। लेकिन मुकर्रम की जो मिन्नतें की गईं, मगर वो किसी तौर पर इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वो अपनी किसी क्लास फेलो को पसंद करते थे और उसी से शादी करना चाहते थे। दादी ने कहा कि वो कभी भी गैर बरादरी की लड़की को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैंने कहीं पर अपनी ज़बान दे दी है और अब मैं हर हाल में उसी लड़की से शादी करूँगा। जबकि दादी इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। पहले पहल तो मुकर्रम आफरीदी ने सोचा कि वो जाकर ज़ायरा से निकाह कर लेते हैं, मगर उनके घर वाले ऐसे अकेले लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और दादी का वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था और उनको मनाना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और नामुमकिन काम था। यूँ मुकर्रम आफरीदी ने उनको मर जाने की धमकी दी और कहा था कि अगर आपने मेरी वहाँ पर शादी ना की तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। और वो बाप थे, डर गए थे और ये कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी कर लूँगा, लेकिन तुम्हें हवेली छोड़कर जाना होगा। और इस वक्त उन पर मोहब्बत का भूत सवार था, इसीलिए उन्होंने इस बात की हामी भर ली। यूँ उनकी शादी उनकी पसंद से उनकी क्लास फेलो ज़ायरा से हो गई। बाकी भाइयों ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि ज़िंदगी ख़ानदान के बग़ैर बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी मोहब्बत के बग़ैर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरे ख़ानदान को मेरी ज़रूरत हुई तो वो कभी न कभी मुझ तक लौट कर ज़रूर आएंगे। और उसके बाद वो हवेली छोड़कर चले गए थे। ज़िंदगी का सफ़र गुज़रता रहा। दोनों बाप बेटा एक दूसरे को याद करते रहे, लेकिन कभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़े। अकरम साहब की एक बेटी और 2 बेटे थे, आज़िब और हारिब, और बेटी ज़ुनैरा, जबकि असलम साहब की 2 बेटियां थीं, महविश और नाजिश। महविश और नाजिश दोनों के वालिदैन का उनके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और शबाना बेगम ने अपनी भांजियों को बहुत मोहब्बत से पाला था। उन्होंने दोनों को अपने बेटों और बेटी जितनी ही मोहब्बत दी थी, इसलिए उन बाजियों की भी इनमें जान बसती थी। और फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने सोच लिया कि नाजिश को वो अपने लाडले और चहीते बेटे आज़िब की दुल्हन बनाएगी, जबकि दूसरी तरफ मुकर्रम का अपने भाइयों के साथ राब्ता था। गो के बाप ने माफ़ नहीं किया था, लेकिन भाई आते थे और वो उनसे मिलते रहते थे, और आज़िब भी आता था तो मुकर्रम साहब ने यही कहा था कि ये तुम्हारा भाई है। मगर वो जब भी वहाँ पर आता था तो उन्होंने हमेशा उसे गुस्से में ही देखा, और वो अपनी ही ज़ात में गुम रहने वाला इंसान था। किसी से वो ज़्यादा बात नहीं करता था। ज़ायरा चच्ची अगर कभी उसे उसकी पसंद नापसंद के खाने पूछती कि बना लें, तो वो भी बस खामोशी से देखता था।
और यही लगता था कि जैसे उसे बात करना पसंद नहीं है, जबकि दूसरी तरफ नाजिश उसके लिए दिल में बहुत से ख्वाब पाल रही थी। और शबाना बेगम ने भी उसे बता दिया हुआ था कि उसकी शादी जब भी होगी नाजिश से ही होगी, और इसे भी ज़ाहरी तौर पर इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, चूँकि नाजिश खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी और उसकी माँ की ख्वाहिश थी, और अपनी माँ की कोई भी ख्वाहिश हो वो कभी भी टालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कभी भी उनको मना नहीं किया था। नाजिश के साथ भी उसका अच्छा ताल्लुक़ था, क्योंकि अब जाहिर है अगर माँ को पसंद थी तो जाहिर सी बात है कि वो सबको पसंद करनी पड़ती। वैसे भी अपनी ज़ात में गुम वो बहुत कमगो इंसान था, जबकि दूसरी तरफ महविश का रिश्ता हारिब से हो गया था। लेकिन एक रोज़ मुकर्रम आफरीदी हवेली में आए, दादा जान से माफ़ी मांगी क्योंकि उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और ख़ुद वो दिल के मरीज़ थे। उन्होंने दादा जान से कहा कि मैंने मोहब्बत तो पा ली, लेकिन बाकी रिश्तों के बग़ैर मैं बहुत खोखला हो गया हूँ, इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को हवेली का नाम दे दिया जाए। तो दाजान बेटे को देखकर पागल हो गए थे और कहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा अरसा जी पाऊँगा, और उन्होंने एक अजीब सी ख्वाहिश सामने रखी थी कि अपने किसी भी पोते के साथ मेरी बेटी का निकाह कर दें। और दादा जान ने भी जब दानिया को देखा तो उनका दिल पिघल कर रह गया था। ये मासूम सी बच्ची उनके ख़ानदान की बेटी थी और वो उसे ज़माने की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि जो भी गलती थी उसके वालिदैन ने की थी, उसने नहीं की थी, और उसकी सज़ा वो इसे नहीं दे सकते थे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं फ़ौरन ही अपने चहीते पोते आज़िब से कहूँगा, वो कभी भी इस बात से इनकार नहीं करेगा। और फिर दाजान ने जैसे ही ये बात कही कि मैंने फ़ैसला किया है कि आज़िब का निकाह मुकर्रम की बेटी दानिया से कर दिया जाए, तो हॉल में बैठे हुए तमाम नफूस को गोया सांप सूंघ गया। शबाना बेगम ने आंखों ही आंखों में शौहर को देखा और नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से ही नाजिश को उसकी दुल्हन के रूप में तस्वुर किया हुआ था, और वैसे भी उन्हें वो लड़की किसी भी कीमत पर कबूल नहीं थी, और ना ही वो इसे पसंद करती थी, क्योंकि उसकी माँ से उनके देवर ने उनकी बहन को धुतकार कर शादी की थी, और अपने चहीते बेटे के लिए वो कभी भी इस लड़की का हाथ नहीं मांग सकती थी, जबकि भाइयों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। अलबत्ता जब ये बात आज़िब से की गई तो वो चुप कर गया था, और शबाना बेगम को इस बात का यकीन था कि वो इनकार करके आएगा, क्योंकि वो ख़ुद दाजान के फ़ैसले से इख्तलाफ करने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा उनका मान कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन जब वो कमरे से आया और उसने कहा कि दादा जान ने मुझे मजबूर कर दिया है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो महविश, नाजिश और शबाना बेगम ने इंतहाई दुख से उसे देखा। तुम जाकर दाजान से कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम नाजिश को पसंद करते हो। उनके कहने पर इसने गहरी सांस ली। मैंने उनको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे मजबूर कर दिया है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अब मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ कि आप अपने बेटे को माफ़ कर दीजिएगा। वो वहाँ से चला गया, जबकि सब पर गोया हवेली की छत ही टूट कर गिर गई। दूसरी जानिब जब दानिया को इल्म हुआ कि जिस इंसान को वो बचपन से अपना भाई समझती आ रही थी अब इससे उसका निकाह हो रहा था, तो उसने इख्तलाफ करने की बहुत कोशिश की। बाबा को बहुत समझाया, मगर वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और कहा था कि मेरे फ़ैसले पर यकीन रखो, ये फ़ैसला तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे देगा। बाबा देखें वो नाजिश को पसंद करता है। वो 1-2 बार हवेली में आई थी और ये बात जान चुकी थी। बेटा, ये पसंद नापसंद कुछ नहीं होती। दादी ने यह फ़ैसला किया है और मैं एतराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने अब की बात कोई एतराज़ किया तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। बेटा, अपने बाप की माफ़ी तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। ये कहकर वो उसे जंजीरों में कैद करके वहाँ से चले गए
और उसके पास भी सिवाय शादी करने के और कोई भी चारा बाकी नहीं बचा था। यूं शादी हो गई थी। कई दिन गुजर गए थे और वो कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि जिंदगी उसके साथ क्या करेगी। सारा दिन वो घर के काम करती रहती थी। शबाना बेगम ने उसे गोया हवेली की नौकरानी बनाकर रख दिया था, क्योंकि मुकर्रम साहब तो वापस शहर चले गए थे और उन्होंने सोचा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस यहाँ पर सेटअप करेंगे। और दाजान सारा दिन डेरे पर होते थे, जबकि बाकी सब अपने दफ्तर में होते। और आजिब भी सुबह का गया रात को लौटता था। सो कोई भी उसका पुरसाने हाल यहाँ मौजूद नहीं था कि जो उसकी हालत देखकर उस पर तरस खा सकता। और आजिब तो माँ का चमचा था। माँ जैसा कहती, जो कहती, वो उनकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता। वो सोच रही थी कि बाबा ने जल्दबाजी में शायद ये फैसला गलत कर दिया है। तभी झटके से कमरा खुला तो आजिब कमरे में दाखिल हुआ और वो बेसाख्ता उठकर खड़ी हो गई। तुम्हें मम्मी कितनी देर से बुला रही हैं और तुम यहाँ बैठी हुई हो? मैंने तुम्हें पहले दिन भी कहा था कि मेरी ज़िंदगी में तो तुम्हारी कोई जगह नहीं, लेकिन मम्मी के दिल में तुम्हें जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने अगर उन्हें हर्ट किया तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कमरे में आते ही गुस्से से चिल्ला उठा। मैं अभी थोड़ी देर पहले कमरे में आई हूँ, वो दुख से कह रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो इस पर यकीन नहीं करेगा। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? वो इसे काट खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शबाना बेगम बहुत ज़्यादा रोई थी कि उन्होंने अपनी मरहुमा बहन से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आजिब था और वो उसे शदीद नाराज़ थी। और इस सारी फ्रस्ट्रेशन को उसने दानिया के ऊपर निकाला था। उसने इससे बहुत ज़्यादा डांटा, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि उसे बेइज्जत किया था। और कमरे के बाहर खड़ी नाजिश को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसको हकीकतन शबाना बेगम और नाजिश ने नौकरानी बनाकर रख दिया था। महविश तो वापस अपने हॉस्टल चली गई थी। वो इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पर ही वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। वो अगर यहाँ पर होती तो शायद इसका कोई हल निकल आता। दिन गुजरते चले जा रहे थे और उसकी इस घर में वैल्यू ज़ीरो से ज़ीरो होती जा रही थी और उसे एक ज़रा मौका नहीं मिलता कि वो आजिब के दिल में जगह बनाने के लिए कोई ज़रा सी कोशिश नहीं कर ले, क्योंकि सांस हवासों पर सवार हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, क्योंकि वो जो भी करती थी वो इस काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल के उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती थी। और वो बेचारी खामोशी से सिर्फ इसीलिए सुन लेती थी कि शायद कभी उनके दिल में इसके लिए कोई जगह आ जाए। लेकिन आजिब तो उसकी इन तमाम कोशिशों और सरगर्मियों से नाआशना था। शाम को हमें एक पार्टी में जाना है, तो खुदा के लिए अच्छी सी तैयार हो जाना, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं से मालूम हो ही गया है कि मैं शादीशुदा हूँ। तो अब उन्होंने भी मुझे इस पार्टी में बुलाया जहाँ सिर्फ मैरिड लोगों को आने की इजाज़त है। उसने सुबह दफ्तर जाने से पहले इंतहाई कड़वे लहजे में उससे मुखातिब होते हुए कहा था, तो वो इस बात पर ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उसे यकीन दिलाया कि वो वाकई उसकी तवक्को के मुताबिक तैयार होगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि साजिशें किस तरह उसका पीछा कर रही हैं। सारे काम जल्दी जल्दी करने के बाद वो कमरे में आ गई और जो फ़्रॉक उसने शहर से ली थी, काले रंग की फ़्रॉक, बहुत खूबसूरत थी, तो उसने सोचा कि वो इसका इस्त्री कर लेती है और वो यही पहन कर वहाँ जाएगी। वो बस इसी बात पर खुश थी कि वो अपने शौहर के साथ जाएगी। जो भी था, इतना अरसा गुजर जाने के बाद आजिब उसे बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि एक तो उसकी शख्सियत ऐसी थी और दूसरा निकाह के बोलों में इतनी ताकत होती है कि वो अपना आप मनवा ही लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आजिब की तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने सोचा कि इसे शादी के बाद पहला मौका मिल रहा है तैयार होने का, तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि उसका बेवकूफ़ शौहर ये बात नहीं जानता था कि उसकी सास ने सख्ती से मना किया था कि जब शौहर घर पर आएगा तो वो सज संवर कर नहीं रहेगी, वरना वो उसके शौहर को इससे बदगुमान कर देंगी।
और इसी डर से वो कभी भी तैयार नहीं हुई थी। उसने फ्रॉक इस्त्री किया तो तभी नाजिश वहाँ पर आ गई और बड़े ही मीठे लहजे में उसकी हमदर्द बनते हुए लबों पर मुस्कुराहट सजाई। हेलो प्रीति, क्या कर रही हो? नाजिश ने हमेशा अपना रवैया उसके साथ बड़ा ही मीठा रखा था, लेकिन खाला को बराबर उसके खिलाफ भड़काती रही। शाम को आजिब ने कहा है कि हमें पार्टी में जा रहे हैं, तो उसके लिए अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि उसे लगता था कि इस घर में उसकी वाहिद हमदर्द नाजिश है। दाजान तो बहुत मसरूफ़ हो गए थे। उनके साथ तो उसकी हफ्तों बाद मुलाकात होती थी, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त डेरे पर ही गुजारते थे और रात को देर गए तक लौटते थे। अरे वाह, यानी कि आज शौहरे नामदार पर बिजलियां गिराने का इरादा है। इसने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी ब्लश होती हुई बस सर झुकाकर कपड़े इस्त्री करने लगी। तुम बहुत प्यारी हो और यकीन करो मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी कि तुम खाला जान की हर बात माननी चाहिए। देखना बहुत जल्द उनका दिल मोम हो जाएगा और जैसे खाला का दिल मोम होगा तो आजिब का दिल खुद ब खुद नरम हो जाएगा। वो शैतानी चाल चलती हुई उसे समझाने लगी और उसके बाद वो खुद खाला के पास चली गई, क्योंकि उनका अपना दिमाग तो इतना गलत कामों में नहीं चलता था। सारी साजिशें नाजिश ही उनको बताती थी। शाम को जब वो तैयार हो गई तो नाजिश ने उसे आकर पैगाम दिया कि उसे खाला बुला रही हैं, तो वो फ़ौरन वहाँ पर चली गई। तुम इतनी सज संवर कर कहाँ पर जा रही हो? उन्होंने सर ता पैरी से देखा, जो इस वक्त ज़रा सी सज संवर कर क़यामत ढा रही थी, और अगर ये इस तरह उनके बेटे के सामने चली जाती तो यकीनन वो दिल हार बैठता और उनको ये सौदा मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा है कि शाम को एक पार्टी में जाना है, तो उनके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊं, इसने झिझकते हुए बताया था। और किसकी इजाज़त से वहाँ पर जा रही हो? उन्होंने गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से इसे देखते हुए अबरू इकट्ठे किए। नाजिश वहाँ से पहले ही रफू चक्कर हो चुकी थी, क्योंकि वो सालसी का किरदार अदा नहीं करना चाह रही थी। जी? उसको इनकी बात समझ में नहीं आई थी कि जब उसका शौहर कहकर जा चुका था तो उसे मज़ीद किसकी इजाज़त की ज़रूरत थी। तुम जाकर चेंज करो, और अगर तुम्हें आजिब ने फ़ोर्स किया तो तुम खुद इनकार करोगी कि तुम इस पार्टी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि तुम्हें पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है। और अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में है। याद रखना कि मैं उसे तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐसा करूँगी कि वो तुम्हें फ़ौरन तलाक दे देगा। इसलिए वो अभी आने वाला होगा, और जाकर कमरे में चेंज करो, और वो चाहे जितना भी तुम्हें फ़ोर्स क्यों ना कर ले, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। उन्होंने इसे धमकी दी तो वो डर गई और फिर कमरे में चली गई और फ़ौरन जाकर चेंज कर लिया। उसे आजिब के गुस्से का भी डर लग रहा था, लेकिन वो उसे खोना भी नहीं चाहती थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आऊँगा, तो पहले ही देर हो चुकी होगी। सिर्फ तुम्हें पिक करने के लिए घर पर आऊँगा। तुम्हें मेरी बात एक बार समझ में नहीं आती? उसे सादा से होलिये में बैठा देखकर वो शदीद गुस्सा कर गया, और वो अंदर ही अंदर उसके गुस्से से सहम गई थी। मैं पार्टीज़ में नहीं जाना चाहती, और मुझे पार्टीज़ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। वो कह तो बहुत नडर अंदाज में रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कांप रहा था, क्योंकि इसके गुस्से का उसे अच्छी तरह इल्म था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? वो इसे और खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कह रहा था। जी, मेरा दिमाग दुरुस्त है, और मैंने कह दिया है कि मैं किसी किस्म की पार्टी में नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो कमरे से वॉक आउट कर गई थी, जबकि आजिब का दिमाग भुन गया था। अब देखना मैं तुम्हें कैसी सज़ा दूंगा, गुस्से से कहता हुआ कमरे से निकला और फिर नाजिश के कमरे के बाहर जा खड़ा हुआ। नाजिश जो लाउंज से आ रही थी, उसे वहाँ देखकर काफ़ी हैरान हुई।
जब से उनकी शादी हुई थी तो उसमें नाजिश से इतनी बोल चाल नहीं रखी थी। सो उसका वहाँ आना नाजिश के लिए हैरान कुन मगर खुशी की बात थी। नाजिश, मैं चाह रहा हूँ कि आज जो पार्टी है उसमें तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि दानिया की तबीयत ठीक नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ सूटेबल रहोगी। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो प्लीज़ मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। उसने एक ही सांस में हर बात कह दी तो नाजिश ने बेयकीनी से उसे देखा। असल कहानी से वो अच्छी तरह आशना थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। देखो, हम दोस्त भी तो थे, तो उसी दोस्ती का ही तो भरम रख लो। वो इस वक्त काफ़ी परेशान लग रहा था। ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी कर लेते हैं। नाजिश का दिल बिल्लियों उछल रहा था, मगर अंदाज ऐसा था कि जैसे वो उस पर एहसान कर रही हो। और फिर वो तैयार होने चली गई, जबकि वो वहाँ ही टहलने लगा। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दरअसल दानिया पर आ रहा था, और वो सोच रहा था कि नाजिश के साथ उसने इतना बुरा किया था, मगर वो उसके लिए इस वक्त खड़ी हो गई थी, जबकि दानिया ने ज़रा भी समझौता नहीं किया था और डंके की चोट पर कह दिया कि उसको पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है, जबकि वो जानता था कि पार्टीज़ में जाना पसंद तो नाजिश को भी नहीं था। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था दानिया, मगर तुमने खुद ही मुझे खुद से दूर धकेल दिया है। उसके बाद वो नाजिश के साथ पार्टी पर चला गया, जबकि दानिया कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा रोती रही। उसका बस नहीं चल रहा था कि पता नहीं वो क्या कर दे। सिर्फ यही वाक़या नहीं हुआ था, उसके बाद भी यके बाद दीगरे कई वाक़ये ऐसे हो गए थे कि वो इससे बहुत ज़्यादा बदगुमान रहने लगा। मामा, आप भाई के साथ गलत कर रही हैं। आप नाजिश के साथ हुई किस्मत की ज़्यादती का बदला भाई से क्यों ले रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो दानिया को पसंद करते हैं। जुनैरा, जो काफ़ी हफ्तों बाद हॉस्टल से वापस आई थी, और उसने जब कुछ दिन घर में रहकर सब कुछ ऑब्ज़र्व किया तो उसे माँ का रवैया बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे भी महविश की तरह दानिया बेज़रर और मासूम सी लड़की लगी थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सो तुम्हें मेरी माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, और तुम्हारे भाई के भले के लिए ही कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने इसे टोक दिया, जबकि उसने तहैया कर लिया था कि वो अपने भाई की ज़िंदगी को ख़राब नहीं होने देगी। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। वो उनके कमरे में गई तो दानिया भी बेड पर सामने ही बैठी हुई थी, और इसे देखकर वो उठकर वहाँ से जाने लगी कि दोनों बहन भाई बात कर लें। नहीं भाभी, आप भी यहाँ पर ही बैठे। जो बात मैं आपको बता रही हूँ उस पर शायद आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको अपनी बहन पर यकीन ना हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने व्हाट्सएप पर आपको शेयर की है। उसने तमहीद बांधने के बाद अपने भाई को देखा। इस बात में कोई शक नहीं है कि नाजिश मुझे बहुत पसंद थी, और मैंने हमेशा यही सोचा था कि वो मेरी भाभी बनकर आएगी। वो लाख उसे नाजिश के साथ जेलस करवाता, लेकिन वो उस जिक्र पर गैर आरामदेह महसूस करने लगा। लेकिन भाई, किस्मत ने कुछ और सोचा हुआ था, और दानिया भाभी और आपका कपल बहुत प्यारा है। जिस तरह लापरवाह और ज़िद्दी सी दानिया आपके सामने आती है, हकीकतन ऐसी नहीं है। नाजिश ने इसके जहन में ये बात डाल दी थी कि आप मामा की हर बात मानते हैं, सो अगर वो आपके दिल में घर करना चाहती है तो उसे मामा की हर बात माननी होगी, और वो इसे आपकी ज़िंदगी से निकाल कर नाजिश की आपसे शादी करवाना चाहती हैं। शुरू में मुझे भी दुख हुआ था, लेकिन दानिया बहुत अच्छी है और सारा दिन घर के काम भी यही करती है। मम्मी आपको जो इसके ख़िलाफ़ बातें करती हैं वो ख़ुद से करती हैं। मैं सच कह रही हूँ कि दानिया बहुत अच्छी लड़की है। वो सिर्फ मम्मी के प्रेशर में आकर ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि बेवकूफ़ लड़की आपके दिल में जगह बनाने के लिए आपके ही ख़िलाफ़ जा रही है। प्लीज़ अपने रिश्ते को बचा लें। ये कहकर चंद सानिये एक दूसरे को देखते रहे, और फिर वो वहाँ से चली गई।
तो उसने फ़ौरन व्हाट्सएप खोला, जिसमें दानिया के साथ मामा का सलूक भी देखा, तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, उसने दानिया के आगे फ़ौरन हाथ जोड़े, जबकि वो बेयकीनी से इसे देख रही थी, क्योंकि उसने तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। आई लव यू, वो बेसाख्ता कह उठा, जबकि वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। तुम मुझे अपना भाई समझती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं समझा था। मैं हमेशा से ही तुमसे बहुत मोहब्बत करता रहा था। दाजान ने मुझ पर फैसला छोड़ा था, उन्होंने मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। तुमसे मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन तुमने ये सारी बेवकूफ़ियाँ करके मुझे खुद से दूर किया है। लेकिन मेरी भी गलती है कि तुम्हें इस घर में एडजस्ट होने के लिए किसी का तो सहारा चाहिए था। तुमने मम्मी को बना लिया, लेकिन तुमने जितनी जंग लड़नी थी लड़ ली। अब तुम्हारी जंग मैं लड़ूंगा, और बहुत जल्द मम्मी के दिल में तुम्हारी जगह मेरे ज़रिए बनेगी। बस मुझे माफ़ करके मुझे कबूल कर लो। उसने हाथ जोड़े तो दानिया पता नहीं क्यों रोने लगी। उसने कब तसव्वुर किया था कि इतनी अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने फ़ौरन आज़िब के कंधे पर सर रखा तो उसने इसके माथे पर लब रख दिए। ज़िंदगी जैसे बदल सी गई। तभी ज़ुनैरा कमरे में आ गई तो वो दोनों अलग हुए। ओह सॉरी, मैं समझी अभी आप लोग लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग तो बड़े फास्ट निकले। आज़िब ने घूरा तो उसने सफाई पेश की। वो सॉरी, मेरा फ़ोन वहाँ पर रह गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। वो फ़ोन उठाकर शरारती अंदाज में कहती हुई वहाँ से चली गई तो वो दोनों हंस पड़े, जबकि वो ब्लश कर दी और फिर फ़ौरन उसके कंधे पर सर रख दिया, जबकि वो भी इसके गिर्द बाजू का घेरा तंग करते हुए मुस्कुरा दिया। जब कभी मालूम हो कि हम गलती पर हैं तो गलती तस्लीम करके ज़िंदगी को यूं ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।